Assalamu alaikum students. I hope you all are fit and fine by the grace of Allah. This is lecture number 8 of class 10th and subject is English. Today's topic is the introduction of unit 4 and its glossary. Title of unit 4 is population growth and its impact on environment. So let's start our today's class. First of all, I would like to ask you to look at the mind map, which is also given on page number 32 of your textbook, and try to predict what is the theme of the lesson. So here you can see a chain of events. At the top is population growth. When population increases, needs of people and consumption of resources increases, which can result in environmental destruction and declining of resources. Declining means कमी हो जाना, decreasing. This may result into increase in scarcity and poverty. Scarcity means किल्लत हो जाना, कमी हो जाना किस चीज़ की. So people will migrate to big cities and a clash and discrimination can be found among people. Clash means fight, war, and discrimination means difference, fark, imtiaz. Through this chain, you must have known the theme. I think I must tell you the theme now. Theme is the fact of population growth on our environment, health, and society. Clear? Now let me tell you about the main points so you can easily understand the whole unit. Population growth directly affects our environment because increase in population means consumption of more resources like land, food, water, and increase in greenhouse gases, garbage mound, and air pollutants. Garbage mound means heaps of rubbish, कूड़े क्रिकेट के जो ढेर होते हैं. ग्रीन हाउस गैसेज मीन्स ऐसी गैसेज जो कि सन हीट को कैच कर रही होती हैं, ट्रैप करती है, जिसकी वजह से ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा होता है. ठीक है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल रीच 9.2 billion by 2050, which may result in high demand for fuel, timber, food, clothes, and shelter. Timber means इमारती लकड़ी वगैरह. ठीक है. And change of forested areas into non-forested areas for urban and arable land usage is called deforestation. And deforestation can lead to decrease in biodiversity and natural habitat. मतलब कि जंगलाती जगहों को गैर जंगलाती जगहों में जब तब्दील किया जाता है काबिल काश्त ज़मीन और शहरों के इस्तेमाल करने के लिए, तो इसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है. डिफॉरेस्टेशन इन सिंपल टर्म्स वी कैन से कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़. इसी डिफॉरेस्टेशन की वजह से हयातियाती तनोव और जानवरों के कुदरती मस्कन में भी कमी वाक़ होती है. हयातियाती तनोव मीन्स किसी भी खित्ते में नबातात व हैवानात की मुख्तलिफ़ इक़साम की मौजूदगी जो कि मतवाज़न माहौल बना रहे होते हैं. According to recent report, almost 18 million acres of forested areas are lost each year, and the main causes of this situation are overpopulation, agriculture, poverty, and urbanization. Urbanization means shahri abadkari, shifting of people to rural areas, which is also making the situation worse, and it creates burden on present resources like education, healthcare, and other services. In the view of scientists, the carrying capacity of Earth is from 500 million to 1 trillion. Carrying capacity means ज़मीन के लोगों या जो भी जानदार होते हैं, जो भी होती हैं चीज़ें, उनको उठा पाने की सलाहियत, कफ़ालत करने की सलाहियत, हम सिंपल टर्म्स में इसको कह सकते हैं. ठीक है. एंड एट द end of the unit, some suggestions are given to decrease consumption of resources like take shorter showers in bathing, say no to the use of plastics, and buy less and recycle our waste. Waste means garbage, rubbish, कूड़ा किरकट वगैरह. ठीक है.
Now let's have a look at the glossary. First is ranches. Ranches means a large farm where cows, horses, sheep are bred. ये मवेशियों का बाड़ा होता है जहाँ पे उनकी अफजाइश नस्ल की जाती है. नेक्स्ट इज़ कैटास्ट्रॉफी. कैटास्ट्रॉफी मीन्स एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज. कोई भी आफत हम इसको कह सकते हैं. नेक्स्ट एंथ्रोपोसीन एपोक which means dominant influence of humans on environment. ये असल में एक साइंटिफिक टर्म है एंथ्रोपोसीन एपोक, जिसका तल्लुक़ है मौजूदा जियोलॉजिकल एज या फिर अर्ज़ियाती उम्र से, जिसमें इंसानों और उसकी सरगर्मियों का माहौल पर असरअंदाज होना, ये उसके बारे में बता रही होती है. नेक्स्ट इज़ गार्बेज माउंड. लार्ज पाइल ऑफ थ्रोन वेस्ट फूड पेपर एट्सेट्रा. गंदगी के ढेर जो कि फेंके जाते हैं, उसमें पेपर भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है. नेक्स्ट इज़ पॉस्चर. पॉस्चर मीन्स अ लैंड कवर्ड विद ग्रास फॉर फीडिंग एनिमल्स ऑन. ये चरागाह होती है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे घास वगैरह हो, जिसके जहाँ से घास वगैरह जानवर वगैरह खा रहे हों. नेक्स्ट हैबिटेट. द प्लेस वेयर एनिमल्स और प्लांट्स आर फाउंड. ये कुदरती मस्कन होता है जहाँ पे जानवर वगैरह और नबातात वगैरह पाए जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ बायोडाइवर्सिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स प्लांट्स टू मेक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट. हयातियाती तनोव. मुख्तलिफ इकसाम के जानदारों, हैवानात, नबातात के किसी भी हिस्से में मौजूदगी जो कि मतवाज़िन माहौल तख्लीक कर रहे होते हैं. Next, greenhouse gases. Gases which cause global climate to be warmer. कोई भी गैसेस वगैरह जिसकी वजह से सन हीट जो है वो कैच होती है, फिर ऑटोमेटिकली ज़मीन के टेम्परेचर में इंक्रीज़ होती है. ठीक है. नेक्स्ट, क्लॉग. टू ब्लॉक समथिंग. रुकावट डालना, किसी चीज़ को रोकना. नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स एक्ट ऑफ कटिंग डाउन द ट्रीज़. दरख्तों का कटाव. नेक्स्ट, एरेबल. कनेक्टेड विद ग्रोइंग क्रॉप्स और फील्ड फॉर कल्टीवेशन. इसका तल्लुक ये फसलों के उगाने से भी हो सकता है, या फिर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि लैंड फिट फॉर कल्टीवेशन, काबिल काश्त ज़मीन. सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन मीन्स शहरी आबादकारी या फिर प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग टाउन्स, स्ट्रीट्स, फैक्ट्रीज़. अब ज़ाहिर शहरी आबादकारी होती है तो तभी ये फिर प्रोसेस होता है सारा. कस्बे वगैरह बनाए जाते हैं, स्ट्रीट्स बनाई जाती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, मतलब लोग जहाँ पे बस रहे होते हैं वहाँ पे ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है. ठीक है. लास्ट वर्ड इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़. सनतकारी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाने का अमल जो होता है. ठीक हो गया. That's all for today's class. Let me remind you your home task. Your home task is to create summary, memorize glossary along with the spellings, and then write on your notebooks. I'll check that when you will come to school. Till our next class, take care of yourself and Allah Hafiz.